सम लीजिएगा, नंबर बोलिए। थर्ड वाला सम जो दिए थे अपने लास्ट टू लास्ट क्लास। MMY ठीक है 170, दोनों 170 है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो MMY 6.5%, 170 डेज का मीनिंग इज वेरी सिंपल। सबसे पहला टाइम जीरो से कहाँ जाएगा 170। 6.5% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर एनुअलाइज किया हुआ है। तो 6.5% इज फॉर हाउ मेनी डेज 360 days. We know all this now. Therefore, 1 day का कितना 6.5 by 360, तो 170 डे का कितना कितना है ये 94. So इसका मतलब if you invest $1 over here, it becomes how much over here? हिसाब से you don't have to do all this calculation. आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर पे 0.065 into 170 plus 170 divide by 360 plus 1. You'll directly come over here. Rounding off वगैरह का एरर ही नहीं होगा आपका. Your understanding, start using the calculator in a much better manner. जहाँ पर आप ब्रैकेट्स वगैरह कन्वीनियंटली यूज कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा राउंडिंग का प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है. ऑल्दो CFA का जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है जनरली दी ऑप्शंस आर अपार्ट. एज एन ऑप्शन इतना क्लोज नहीं होगा कि आप थोड़ा राउंडिंग के कारण आपका गलत हो जाए आंसर. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. सो इट इज नॉट गोना हैपन दैट वे in all probability, but why not try to be a little more accurate? Because eventually when you start doing other subjects like fixed income and all, and especially in your level 2 where you will have to use the calculator with 1 or 2 or 3 brackets. In that situation you'll have to be comfortable with the calculator this manner. You cannot write every step. आप 4 decimal का बार step नहीं लिख सकते. So try to understand that from the very beginning itself. I am not honestly looking at so much of the level 1 but also of the level 2 because I know I'll have to work very hard for level 2 if I do not make a base strong for level 1. So इसलिए first is a concept I mean I'm just literally forcing the same thing again and again in your head. So वही numbers वगैरह के लिए कल जो बोला था ना calculator में 8 to the power 1/3, 8 to the power 2/3, उसको अलग अलग तरीके से निकाल के देखो. You should get the answer as a 2 or a 4 when you're doing that. Try to calculate it from different methods and you'll automatically get comfortable with the calculator. So do those simple tricks, simple numbers को लेकर के जो mentally कर सकते हो उसको यूज करके कैलकुलेटर को यूज करो and you get comfortable with that. So 1 becomes 1.030694 because MMY क्या था HPY को simple interest basis पर 360 days के लिए एनुअलाइज किया था. तो एनुअल 360 का इतना है simple interest basis पर, तो नॉर्मली 170 डे का कितना होगा. तो 1 becomes that much in 170 डे. तो अपना ये पार्ट आ गया. अब तो कुछ है ही नहीं. अब EAY अगर निकालना है तो EAY इज नथिंग बट 1.0309694 होल टू द पावर क्या होगा 365 by 170. अब दिस इज व्हाट $1 बिकम्स इन 365 डेज. तो ऑब्वियस सा बात है ना EAY निकालना तो एक -1 करना पड़ेगा. मेरे को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता -1 से क्योंकि -1 नहीं भी करूंगा तो कैलकुलेटर में जब 1 point something दिखेगा तो मेरे को तो पता है ना मेरा आंसर वो point something वाला पार्ट है. And get comfortable. We are never going to use percentage as percentage. As in 8 को 8 नहीं डालेंगे कोई भी फॉर्मूला में 0.08 डालेंगे. Whenever you use an 8%, you always use it as a 0.08 and not as an 8% over there. So -1. यही चीज BY का होगा to the power 365 by 170 into half. What does $1 become in 1 year? तो 6 months में कितना -1 into 2 BY. अब यही चीज आप सोचिए वो जो टेबल बनवाया था आपको फर्स्ट डे पर उसमें जो फॉर्मूलाज दिया था उसको यूज कर करके इफ यू कम टू दीस स्टेप्स डोंट यू थिंक यू विल मेक मोर मिस्टेक्स इन दैट मैनर. बुक का जो भी तरीका हो योर आंसर्स एंड योर बुक्स आंसर्स विल मैच. So find out all the answers in your manner. Don't go कि Schweizer ने क्या steps किया है because obviously we're not following Schweizer का steps. We are following our logic. You'll get the answer and it's a correct logic. There's nothing wrong. I'm not teaching you a bad shortcut. I'm teaching a very logical shortcut. ऐसा नहीं है ना कि अपने मतलब बेमतलब वाला शॉर्टकट स्टेप वाला शॉर्टकट फॉलो कर रहे हैं. We're doing it very logically. And then you have the BDY वाला पार्ट. तो BDY के लिए भी तो यार सिंपल है. आपका ये और ये निकल गया तो या तो फिर भाई F minus P divide by F into 360 by 170 करो. Discount as a percentage of face value तो निकालना है. It's not even complicated. Discount as a percentage of face value into 360 by 170. और तो कुछ है ही नहीं. और a better method
और समथिंग दैट आई फाइंड कन्वीनियंट इज ये वाला नंबर लिख के इसका रेसिप्रोकल करूंगा, व्हाट $1 बिकम्स, क्योंकि होता क्या है ना, फिर वरना मेरे को ये माइनस ये करके डिवाइड बाई ये लिखना पड़ता है, और रेसिप्रोकल -1 इंटू 360/170. यू थिंक हाउ सिंपल इट इज. रेसिप्रोकल किया तो 0.9 समथिंग आएगा, दैट इज व्हाट डज 0.9 समथिंग बिकम $1 ओवर हियर. -1 किया तो डिस्काउंट आया, एंड डिस्काउंट इज ऑलरेडी ऑन 1 बिकॉज द फेस वैल्यू इज 1 ओवर हियर नाउ. You're understanding? When I take the reciprocal, that means 0.9 something becomes $1 over here. 0.9 something becomes $1 over here. तो जब मैं इसका डिफरेंस लेता हूं तो वो डिफरेंस इज तो ऑलरेडी ऑन $1. उसको तो डिवाइड बाय 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना फेस वैल्यू से. So it's already a percentage of the discount. You're understanding? Not problem है. अगर 1 becomes 1.030694, इसका रेसिप्रोकल करके बताओ कितना हुआ? 0.97, 4 डेसिमल 02, क्योंकि यहाँ का 2 डेसिमल इज पॉइंट समथिंग परसेंटेज ना. यहाँ 0.97 करोगे तो 3% बोल दिए, तो 3 पॉइंट कितना परसेंट तो भूल गए ना, बट 0.9702 इज 2.98%. So the moment I see this, मेरे को नहीं देख के समझ में आ रहा है कि 2.98% इज अ डिस्काउंट ऑन 1 ओनली, तभी तो परसेंट बोल पा रहा हूँ. सो मेरे को कुछ डिवाइड वाइड करने का जरूरत ही नहीं है. द मोमेंट आई डू द रेसिप्रोकल, आई हैव दिस नंबर -1 किया, डिस्काउंट आया, इंटू 360/170, and that is your bank discount yield. बोलो, clear? MMY का मतलब क्या हुआ? MMY का मतलब हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इक्विवेलेंट यील्ड. मनी मार्केट में क्या होता है ना, आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. उसका जो कंपाउंडिंग होता है अपने उसको 360 डे और सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पर ही कैलकुलेशन करते हैं उनका. तो जब MMY स्टेट किया जा रहा है तो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट MMY, यू आर टॉकिंग अबाउट मेरा इंटरेस्ट कितना पड़ेगा अगर मैं 1 साल से कमती पैसा उठाएगा मार्केट से. When I talk about a BEY, I will discuss मेरा कितना इंटरेस्ट पड़ेगा अगर मैं मार्केट से पैसा उठाएगा लॉन्ग टर्म में. So every rate has a different logic. That is why BEY, मतलब BEY basically, if I have to borrow money from the market for a long term and I will be paying interest on a 6 monthly basis, then मेरा interest का खर्चा कितना पड़ेगा? That is what BEY is telling you, because that is a bond equivalent yield and the bond is a long term 6-month compounding security. But when I talk about this one, MMY, I'm talking about a short term security wherein the interest में compounding is not an issue. So it could be a 100-day bill, it could be a 200-day bill. Just to make the comparison between those small securities easier, what I'm doing is I'm annualizing it on a simple interest basis, 360-day basis. So आपका जो original bill था, that was a 170-day bill. अगर 170 डे का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, मतलब यू विल बी पुटिंग इन मनी एट टाइम 1 एंड यू विल बी गेटिंग मनी टाइम 0 एंड यू विल बी गेटिंग मनी एट 170. पैसा तो तभी मिलेगा, लेकिन उसी चीज को, वही HPY वाला चीज को यू हैव एनालाइज्ड इट टू 360. So when I say 1 becomes 1.065 in 360 days, is it correct? 1 does not become 360 days में 1.065 ना. क्या 1.065 बन रहा है 360 डे में? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है. क्या चीज? जैसे बोलो, BY अगर होता 6.05, इसका मतलब 1 becomes 1 plus 0.0325 in 6 months. BY का मतलब यही है. अगर BY 6.5% दिया है, इसका मतलब ओके. सो व्हेन आई टॉक अबाउट सपोज MMY 6.5%, तो उसका मीनिंग ये हुआ अगर BDY इज 6.5%, इसका मतलब होता ये जो आपका क्या निकल के आया 3.0694 ना, दैट इज 1 एंड यहाँ पे 1 माइनस 0.03694 होता अगर BDY होता. तो अगर EAY होता है, इसका मतलब टाइम 0 टाइम 365 पे 1 becomes 1.065. और अगर BEY होता तो इसका मतलब 1 becomes 1.0325 at 6 months. ये EY हुआ. बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड हुआ तो इसका मतलब 6 मंथ कंपाउंडिंग, तो 1 becomes 1 plus 6.5% का आधा. अगर एनुअल यील्ड हुआ तो 1 becomes 1.065 एक साल बाद. अगर बैंक डिस्काउंट यील्ड हुआ तो वही प्रो राटा किए, लेकिन यहाँ पे क्या था 1 becomes 1.03904, राइट. बट यहाँ पर 1 वुड हैव बीन 1 minus 0.03694, क्योंकि बैंक डिस्काउंट यील्ड, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. इफ यू वांट यू टेक दिस डाउन, इट्स अ गुड वन. सो यू टेक दिस इज 1 माइनस ये BDY, ये तो अगर वही 6.5% अगर चारों चीज के लिए दिया होता तो टाइम लाइन पर उसका मतलब क्या है? दैट इज व्हाट दिस इज. सो यू वांट यू टेक दिस. परफेक्ट.
समझ रहे हैं? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? Don't curse yourself to get up at 8 o'clock in the morning and come over here. Yeah, show some energy. ये सब चीज को you start enjoying this subject and all, मजा आएगा पढ़ने में. Trust me, you have to enjoy what you're learning, what you're studying. Otherwise, it's not gonna be very fruitful in your career. Force yourself थोड़ा सा अगर problem हो रहा है तो. You start enjoying. जब calculations आएगा, कुछ कुछ proof अपने आप करोगे तो you'll feel very happy कि अच्छा ये हो रहा है मेरे से. मैथ्स बनता है तो खुशी भी होता है. I mean, although we have a lot of distractions and the amount of distractions have become too much, but the competition is also too much and there's a lot to do. So मतलब वो डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके ना ये सब चीज पे एंजॉय करना शुरू करिए. Yesterday after having that conversation with you people, I'm feeling like, you know, taking a couple of days off and just read and sit in my room and read आराम से, or go somewhere out and read. हुआ? This is okay? Next sum दीजिए. Quick. All right, simple. Time 0 by है, doesn't matter. So let's say this is 365 बोलते हैं, इसको 6 months बोलते हैं. तो 1 becomes कितना यहाँ पर 2.15. तो 1.0215 over here. इसका मतलब एकदम सिंपल है, 6 months कंपाउंडिंग है. अब वहां पर कितने बनेगा? अगर EAY निकालना है तो EAY is 1.0215 square minus 1. ये तो सिंपल ही था बहुत ज्यादा. उसके बाद में आपका MMY या BDY बचा. जब 1 6 months में इतना होता है तो 1 ईयर में कितना होता है? 1.0215 होल स्क्वायर. दैट इज व्हाट इट बिकम्स इन 1 ईयर. तो फिर 150 दिन में कितना होगा? राइट, दैट इज व्हाट इट बिकम्स. अब मेरे पास P1 अगर आ गया है, P0 इज इक्वल टू 1, MMY क्या है? राइट, P0 करने का जरूरत नहीं है नीचे, because P1 minus P0 directly is going to give you the rate on P0, that is 1. कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, but it's 1 only ना. कैलकुलेटर में तो कम से कम मत डिवाइड करना by 1. That's the least you can do to me. ठीक है, सिंपल. ये तो बहुत ही सिंपल था. एंड dy का अगर बात करेंगे 300 दिन के लिए, तो what does $1 become in 300 days? राइट, ये f आ गया, p इज इक्वल टू 1. उससे बेटर ये जो आंसर आएगा इसी का रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, -1 इंटू 360/300. अब ये गलती से भी मत बोलना कि यहाँ पे 300/365 किए बेकार का, क्यों वापस 360/300 कर रहे. डायरेक्टली उसको 300 दिन का ही रहने देते या उसको 360 डे का ही रहने देते. ऑब्वियसली यार, दिस वन जो आई एम डूइंग, दिस इज तो कंपाउंडिंग के बेसिस पर, और उसके बाद मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूँ. डिस्काउंट को सिंपल इंटरेस्ट सिंपल बेसिस पर 360 डे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटू 360 करके, नॉट पावर में. देयर इज अ डिफरेंस. $1 डज नॉट बिकम 1.0215 in 300 days. $1 becomes 1.0215 only in 6 months. That is exactly what it means. Compounding 6 monthly basis है, तो 300 दिन में कितना होगा? To the power 300/365. I want this answer. एक बार कैलकुलेट करके दो इसका. नहीं, पूरा BDY 4.2018 आ रहा है. BDY सबका 1236, 4.1236. अच्छा, इसी का बताओ. 1.0215 y to the power x, bracket open, 2 into 300 divided by 365, bracket close, equal to. That is what will give you this answer. कितना आया? 1.03559. That उसका रेसिप्रोकल करो, कितना आया? वैसे करो एक बार. 1.0355 0.9656 -1 करो, कितना आया? 0.03436 into 360/300 into 1.2 है. वैसे कैलकुलेटर ज्यादा जल्दी दिमाग चलना चाहिए. पॉइंट, that's the answer. 4.1236%.
360 by 300 is 6 by 5, that is equal to 1.2. Just because you have a calculator in hand, ट्राई करिएगा कि थोड़ा सा ये भी दिमाग भी ज़्यादा जल्दी चले. एग्जाम में नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम में you don't want to make a mistake. If you have the calculator in hand, you would not want that. But what I'm saying is, do not get so dependent on the calculator and all these things these days. मॉल में भी जाएंगे तो डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना, तो फोन का कैलकुलेटर पे करेंगे. You'll not use your brain. So मतलब it's all very related. You need to जितना एक्सरसाइज करोगे ना इस चीज को भी, उतना ज़्यादा चलेगा. But ठीक है, that's a different case altogether. Anyways, it's okay till here. BY BDY comfortable. Again I'm telling you, there's a 15-20 minute interest rate करके एक वीडियो YouTube पे. ASW, there is no H. You type my name, you type interest rate, you get the video. Website पे भी I think इस week में बैठ के करा दूंगा. So they'll have all that. So there are small little 2, 3, 4 topics also, and quants का पूरा 7-8 classes है. So you see that and then it's okay. And quants needs to be very good because corporate finance depends on it. Fixed income depends quite a lot on it. Equity depends on it. Equity नहीं, fixed income depends on it. Corporate finance है, portfolio है. So there'll be a lot of portions which depends on quants. Not the next half, but the basic.